एक बार ना तुम ले लो, यहाँ पे लिख दो लाइव स्ट्रीम, ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम डॉट। Hi everyone. So we have now initiated a new initiative that is called as the DAMS Telegram group. I'm sure you know all of you who are member of this Telegram group. You already know that how we are giving you informations and updates on this group. Now, just before the NEET PG exam, I also want you to have the ability to ask doubts. So I have started a event called as आग लगा दो. In the next 7 days, हर रोज रात को 9 बजे 9 p.m. one faculty member will be live just like I am, and you can ask your doubts in the chat. So my request to you will be, if you have any doubts that you want to ask me regarding radiology or regarding your study pattern, anything that you want to ask, you feel free to type in the group, and in the live stream I'll be answering side by side. It's a new initiative that we have done on this on the DAMS Telegram group, and I'm very excited about this because I know that technology gives us the ability to connect to you in different ways, and we are also able to bring value to you by being a part of your journey in close association. So I'm looking at the phone, I have the comments with me, and I should be able to answer your queries in the live stream itself live, so that it gives us the ability to do things in a more comfortable manner. So anybody who has any query, feel free to type in the group, and whenever you type in the group, I'll answer. One of the most common query I have had in the last 2-3 days is what to do in the last 2 weeks. One of the things I want you to do is, please make sure that you don't miss out on the PYQs. PYQ INICT के करें कि नहीं करें, PYQ आपने करने नीट पीजी के और FMG, because they are all made by the same board. And second question that people have asked me is, sir, what should I revise in the final week or 10 days? DVT workbook should be your go-to resource for the final revision. Third thing people have asked me is, sir, I am stuck at a certain number. Should I be giving more grand tests or not? Should I be doing more GTs or not? Answer is yes, you should be giving more and more grand tests. Grand tests are more valuable than a custom test. कस्टम टेस्ट के मुकाबले ना ग्रैंड टेस्ट में ज़्यादा वैल्यू होती है. सो आई वॉन्ट यू टू डू ग्रैंड टेस्ट मोर इंपॉर्टेंट देन दी कस्टम टेस्ट मॉड्यूल्स. क्यों? कस्टम टेस्ट आप बनाते हो, ग्रैंड टेस्ट टीचर बनाते हैं. फोर्थ थिंग इज, if you have a weak zone, if you have a subject which you find weak, you can actually improve upon yourself by giving SWTs, है ना. So I see one bacha has asked a question, Amu. So Amu, if you are able to see me and you have a question, why a question is, sir, while doing my GT, getting new questions correct after PYQ session, but recent GT I made silly mistakes. Silly mistakes क्यों होते हैं? I'll explain to you. Silly mistakes दो कारणों से होते हैं. ओवर थिंकिंग, अंडर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आपने ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आप ज़्यादा सोच के गलत कर लिए. सो इफ इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लासेस, गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, है ना. ओवर थिंकिंग मत करो. जो क्लास में पढ़ाया एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा मैंने दिखाया वैसा ही होता है, तो वही मार्क करना है फिर, ठीक है ना. गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. And second is that if you have a kind of a question which requires more thinking, it is indirect and you have to rule out, तो उसमें अंडर थिंकिंग नहीं करेंगे, एक एक करके रूल आउट करेंगे. अगर नहीं पता डायरेक्टली तो रूल आउट करके जाएंगे, टाइम देंगे उस क्वेश्चन को, सो दैट यू डोंट अंडर थिंक एंड यू डोंट क्रिएट सिली मिस्टेक्स. ओके, सो आई थिंक द ऑडियो इज कमिंग फाइन. वन बच्चा सेड कि वो ऑडियो नहीं आ रहा. ऑडियो एकदम बढ़िया आ रहा है. आई कैन ऑल्सो क्रॉस चेक ऑल्सो साइड बाय साइड. आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द स्ट्रीम साइड बाय साइड.
So this is a new feature from Telegram that we are using now, which is called as the live stream, and we are here with you live on डैम्स टेलीग्राम ग्रुप. अभी फेसबुक ग्रुप से भी बड़ा अब हम डैम्स टेलीग्राम ग्रुप को बनाएंगे. आई वांट यू टू मेक श्योर दैट यू टेल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, कॉलेज बैचमेट्स टू ज्वाइन द डैम्स टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर एंड मोर सच एक्टिविटीज़, है ना. ज्वाइन करते हैं, मिल के बात करेंगे तो हम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे. Okay, so Amu, I hope I have been able to give you an answer to a question how to reduce silly mistakes. And anybody else who has any queries, feel free to ask. From tomorrow, we are doing a 7-day event where every day 9 p.m. there will be a faculty member answering your doubts on the Telegram group. Make sure that you tell this to your friends also, है ना. दोस्तों को भी बताना है. ज़रूरी नहीं है हर दोस्त से compete करना है, उनको भी साथ लेके आएंगे. And we will be doing a lot of things on the DAMS Telegram group, DAMS eMedico's official group on Telegram. Do follow it, do join the group for updates as well as such video sessions. Anybody has any queries, anything you want to join, please join the live stream icon on the top. Okay. Now, Rachana has asked a question, sir. I'm not able to recall important points during GT, so I'm not getting desired marks. Okay. So why you are not able to recall? Because we have to train our mind to recall. How do we train our mind to recall? By giving more and more tests. ठीक है रचना, द आंसर इज और टेस्ट दो सो दैट आदत पड़ जाए रिकॉल करने की, है ना. देन इट बिकम्स मोर इजी. अन्वेषा ने पूछा सर डीवीटी पीवाईक्यू जीटीज आर एनफ फॉर 15 days. Yes, these are not only enough, these are must do resource Anvesha Sahu for the last 15 days. Okay. And one bacha is saying, Neelu, how to go with the notes now? So नीलू, by now we are assuming that अभी तक आप नोट्स को बहुत बार पढ़ चुके होंगे और मुझे लगता है आप 2 या 3 रिवीजन कर भी चुके होंगे. अब क्या होता है, इफ़ यू ट्राई टू डू अनदर रिवीजन ऑफ द नोट्स नाउ, मैक्सिमम यू कैन डू इज मार्क्ड पॉइंट्स जो मार्क किए टीचर के साथ उनको कर लो, है ना. लेकिन उससे भी बढ़िया है कि हमने मार्क करके एक वर्कबुक ही बना दी ना, डीवीटी वर्कबुक आपको दे दिया. सो लास्ट 15 days में डीवीटी वर्कबुक विल बी अ मोर faster ideas to touch all high yield topics in every subject. Okay. And another bacha has asked, Neelu has asked ki sir, I'm not able to complete my targets. So but still beta you need to make targets. If we make target then only we are able to finish it, है ना. टारगेट बनाएंगे तभी तो खत्म होगा ना, अगर बनाएंगे नहीं तो कैसे होगा, है ना. So we need to make some targets. एक बच्चे ने पूछा, इज देयर एनी डैम्स पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट एमवीपी. बेटा देयर इज अ कोर्स ऑन डैम्स eMedico's I've called as PYQ का बाप, where last 5 NEET PG and 4 FMG papers have been discussed. It is a good idea to go through the PDF of those course and the videos if you have not seen it already. Okay. बच्चा Sarai के Megha has asked, what should be my frequency of giving GTs in the last 2 weeks? Frequency of giving grand test in the last 2 weeks should be once every 4 to 5 days. हर 4-5 दिन में एक GT देना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम स्किल बनेगा, तभी रिकॉल स्किल बनेगा. ओके. I think one bacha has asked another question. Amu, I think I missed out on your question. ओके. एक बच्चा कह रहा है, अनु सर अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अदर देन लास्ट सब्जेक्ट्स, तो उसको लास्ट देर में कैसे कंप्लीट करें. डीवीटी कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, एसडब्ल्यूटी ऐड कर लो. अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, आपने देखा होगा मैंने बताया अनु कि देर इज़ अ कोर्स कॉल्ड एज डैम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहां आप ग्रैंड टेस्ट देते हो. उसके साथ में एक बॉक्स बना हुआ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. उसमें बड़े कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट पेपर्स हैं रिवीजन के लिए. तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपका निल हो गया है ना, तो उसको उस एसडब्ल्यूटी से आप पूरा कर सकते हो. एसडब्ल्यूटी डीवीटी पीवाईक्यू एक अच्छा कॉम्बो है जो 15 दिन में खत्म किया जा सकता है. ओके. एंड एक बच्चे ने पूछा है अमू ने कि सर जो मेरे पिछले टेस्ट में ठीक हो गए थे अब गलत हो गए. तो बेटा कंसंट्रेशन लानी पड़ेगी, पेपर में फोकस करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी पेपर करने की. ओके. एक बच्चा कह रहा है टुमारोज यूट्यूब रिवीजन वीडियो इज इट डिफरेंट फ्रॉम डीवीटी. डीवीटी तो शाह गोल्ड स्टैंडर्ड है ही, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिन्होंने डीवीटी नहीं अटेंड किया या किसी कारण से अभी उनको एक रीइंफोर्समेंट चाहिए टीचर से, उसके लिए हम उसको दोबारा हम एक रिवीजन करेंगे. थोड़ा तरीका अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली डैम्स इज नोन फॉर क्रिस्प कंसाइज मटेरियल. हम उसको ओवर एग्जेग्रेट नहीं करते, हम काम की चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा बात करते हैं. रिपीटेड हैमरिंग ऑफ यूजुअल टॉपिक्स इज आवर स्ट्रैटेजी, है ना. एक बच्ची ने पूछा सर मैंने माइंड मैप नहीं बनाए तो अब रिवाइज करना मुश्किल लग रहा है, तो डीवीटी यूज़ कर ले. नीलू बेटा, नाउ इफ यू यूज डीवीटी दैट विल बी अ गुड आइडिया. एंड आई थिंक
ओके सना, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर योर क्वेश्चन कि ऑब्स गायनी में डीवीटी करना है तो पीवाईक्यू किया, और क्या साथ कर सकते हैं, एसडब्ल्यूटी और साथ में कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। एंड धनवीर ने पूछा कि सर हाउ टू ऑप्टिमाइज टाइम ड्यूरिंग जीटी। हर आधे घंटे में आपको चेक करना है, अपनी घड़ी में आधे घंटे का अलार्म लगा लो। Every half an hour you should be at 35 questions. Every half an hour you should be at 35 question. That should be your goal while you're doing GT. This is how you will do time management. Okay. And Gray, एक बच्चे ने पूछा सर should I give GTs or should I do PYQs and DVT? तीनों करना है बेटा. You have to do PYQs, you have to do DVT, and one GT every 4 or 5 days to get into the form of giving the final exam. Okay. एक बच्चे ने पूछा है आर एस सर शुड आई डू PYQ इन द लास्ट 4 days और शुड आई सी इट नाउ। बेटा PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आखिरी के लिए क्यों छोड़ रहा है, अभी कर ले। कभी आखिरी वाले दिन कोई काम पड़ जाए, घर पे कोई परेशानी आ जाए, वो छूट जाएगा, अभी खत्म कर उसको, है ना। आर एस, डू यू एग्री और नॉट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू बी डन नाउ, उसको बाद के लिए क्यों छोड़ रहा है? ठीक है, क्लियर? Okay, so I hope you get a hang of the technology, that how the live streams will be happening, and teachers will even have a board also. I have just put a एक कोड डाला है मैंने आपके लिए। जब टीचर्स अब रोज यहाँ पे जब डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, उनका बोर्ड भी होगा, लिख के भी बता पाएंगे। अभी आपने जानना है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है ना। हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो सक्सेस नहीं आएगा। कंफर्ट जोन बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पे कुछ कभी कोई पेड़ या कोई प्लांट उगता नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, सक्सेस तभी मिलेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया और मैंने एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट दिस टेलीग्राम ग्रुप बिकम्स द मोस्ट हैपनिंग टेलीग्राम ग्रुप फॉर मेडिकल एजुकेशन, एंड लेट्स डिस्कस हियर, है ना। ओके, पीयूष ने पूछा सर आई एम गिविंग वीकली जीटीज एज यू सेड, बट आई एम स्टक एट 145 to 150। ठीक है, अब पीयूष मैं बताता हूँ, अगर बेटा आपके 200 में से 150 ठीक है, जो 50 गलत हैं, क्या उसको अटैक कर सकते हो? उनमें ढूंढ सकते हो कि क्या ऐसी चीजें थी जो आप गलत कर रहे थे? क्या वो सोचने में गलती थी कि नॉलेज में गलती थी? क्या वो नोट्स में वापस जाके देखना है? थोड़ा सा अटैक कर दे तो 2-3 टेस्ट ऐसा करेगा ना, तो और 5-6-10 क्वेश्चन और ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ढूंढ के क्या गलत हो रहा है ना। दिस इज द वे फॉरवर्ड, है ना। डॉक्टर ड्रे ने पूछा है कि विल यू यूज लाइव स्ट्रीम फॉर डाउट सॉल्विंग टू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज? यस बेटा, एवरी डे 9 PM वी आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रीम टू सॉल्व योर डाउट्स, बट ओनली थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू इन रिटर्न, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्या आप ये बात अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंचा पाओगे, ताकि ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। बिकॉज मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हैं आज। तो अगर ये आप पहुंचा पाएंगे कि इस तरह से यूज़ करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लाइव स्ट्रीम को ऊपर ज्वाइन करना है, तो फिर वो हमारे साथ डाउट सॉल्विंग कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं डॉक्टर दीप्ति ने वहाँ पे एक ऑलरेडी कैलेंडर भी डाल दिया है। यूट्यूब चैनल पे 7 बजे रोज, टेलीग्राम पे 9 बजे, अगले 7 दिन तक रिवीजन डाउट सॉल्विंग हम रखेंगे। किसी को कुछ पूछना होगा, हम मैं चाहता हूँ सारा खत्म करें, अब अच्छा से पेपर करें, है ना। ओके, वारा लक्ष्मी हैज आस्क्ड शुड आई डू डीवीटी वीडियोस और बुकलेट? बेटा, इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास एंड मेड द बुकलेट, देन द बुकलेट शुड बी द आइडियल वे, इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। ओके, क्लियर? ओके, एसके ने पूछा सर आई एम डूइंग PYQs फ्रॉम नीट, INI, CET, FMG, DVT ओनली दीज डेज, आई एम स्कोरिंग 100। बेटा, बट देर इज समथिंग लैकिंग। अगर आप 100 ठीक कर रहे हो एसके, दैट मीन्स यू आर डूइंग 100 रॉन्ग, दैट मीन्स देर हैज टू बी मोर वर्क डन। 100 कम है, हमें उससे ज़्यादा लेके आने। So if you can identify some weak subjects, you can do a SWT from the online test series at this stage to cover up that subject better, है ना। एक बच्चे ने पूछा है कि इफ़ वी डू PYQ देन रिवाइज ओनली रॉन्ग क्वेश्चंस, तो इस तरीके से रिवीजन सही पूरा है या पूरा रिवीजन पहले करें? ओके, डॉक्टर वेन, बेटा एक बात तो आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि सारा पेपर PYQ से ही आता है। ऐसा एक किसी को लोगों ने ऐसा फैलाया हुआ है, ऐसा नहीं है। नीट पीजी हर साल पूरा गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी मिलके पेपर बनाती है, तो उसमें PYQ से टॉपिक इंस्पायर होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो डीवीटी भी साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। आपको डीवीटी करो और PYQ दोनों करो, ठीक है। सिर्फ रॉन्ग करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ओके, एक बच्चा फिजा ने पूछा सर आग लगा दो और PYQ के बाद में डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इन आग लगा दो, विल ट्राई टू डू अ क्विक रिवीजन ऑन यूट्यूब, एंड दोनों ही लाइव इवेंट करेंगे। यूट्यूब पे भी चैट बॉक्स में आप पूछ सकेंगे, टेलीग्राम में भी आप चैट पे पूछ पाएंगे। तो हम उसी समय डाउट सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपका डाउट खत्म हो जाए, आपका रैंक इंप्रूव हो जाए। और आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी का पर्पस मीट हो जाता है कि नहीं यार, आपको हमने, आप जहाँ पे खड़े थे उससे आगे ले गए हम, है ना। वही हम चाहते हैं।
एक बच्चे ने पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम डीवीटी, आई हैव ओनली डन पीवाईक्यू एंड डीवीटी फॉर मेडिसिन ऑब्सगाइनी एंड सर्जरी। बच्चे एक तो आपका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन ऑब्सगाइनी सर्जरी तीनों बड़े सब्जेक्ट हैं भाई। अगर इसमें एक एसडब्ल्यूटी भी कर लेगा भाई या बहन जो भी है, अगर एसडब्ल्यूटी भी कर लेगा तो कुछ जाएगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन तीन सब्जेक्ट में। अगेन आई रिपीट इन इंग्लिश, medicine, surgery, obs-gynae are major subjects. In these subjects, if you do SWT of these subjects also, it is very, very important. Okay. And Gaurav, Dr. Kashish will be there in the Telegram group. I think the calendar is already shared with you. Dr. Kashish is going to be live on the Telegram group on 20, I think 25th. 25th. आपके ऊपर में अभी हमने कैलेंडर भी शेयर कर दिया है. Okay, Gaurav. A में पूछा सर आई एम स्टक एट 120 करेक्ट. So again the idea is give more GTs, find what is going wrong, are you being less aggressive, more aggressive, हो क्या रहा है, गलती हो क्यों रही है, किन टॉपिक में गलती हो रही है, रिवाइज तो करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट और दो. SWT यानी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं वो भी दे दो, ग्रैंड टेस्ट भी दो, दोनों पे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी. सना ने उसी का कॉरोलरी पूछा हुआ है सर हाउ मेनी करेक्ट नंबर क्वेश्चंस इन जीटी एट दिस स्टेज इज कंसिडर्ड सेफ स्कोर. 120 से ऊपर तो आना पड़ेगा, सेफ नहीं है, लेकिन 120 के नीचे अनसेफ है, उसके ऊपर जितना जाएंगे उतना अच्छा है. 120 करेक्ट हमें मान के चलना पड़ेगा. ओके. And I hope you're all excited about the opportunity that is coming your way. एग्जाम जो होता है उसको प्रॉब्लम मत सोचो, उसको सोचो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है. इट इज हाउ वी लुक एट थिंग्स, हाउ व्हाट इज अवर पर्सपेक्टिव, है ना. और एक बच्चे ने पूछा है ए आर आई एम डूइंग 140 to 116 GTs, हाउ शुड आई. बेटा आपको और टेस्ट देनी चाहिए. ए आर यू आर इन अ गुड जोन, try to hone your skills by giving more grand test. If others are doing 1 GT in every 5 days, you can do 1 in every 3 days. आप अच्छे जोन में हो, अटैक करो कि टॉप जोन में आ जाओ. ओके. एक फिजा ऑब्सगाइनी का क्वेश्चन है, आई थिंक डॉक्टर दीप्ति ऑडियो में आंसर करेंगे आपको. एक बच्चे ने बोला फेक इट टिल यू मेक इट. कह रहा है सम सब्जेक्ट्स आई एम नॉट डन कंप्लीट नोट्स, लेकिन मैं PYQ DVT और TND कर रहा हूँ. परफेक्ट है बेटा. आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया एट दिस स्टेज कि TND DVT PYQ को मिला दें तो एक अच्छा कॉम्बो बनता है जो बहुत ही हाई यील्ड है और बहुत ही मतलब सटीक है. कर सकते हैं बेटा, इट्स अ गुड आइडिया. ओके. डॉक्टर ने पूछा एक बच्चे ने डीवीटी नोट्स में बेटा जो डीवीटी वर्कबुक थी जो अमेजोन पे अवेलेबल है, आपने अगर उस समय कोर्स के साथ अगर ली होगी तो उसके साथ हम उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं. ओके. एक बच्चा क्रिश कह रहा है 160 सेफ. लगता तो है बेटा, है ना, लगता तो है, बट डू द सेम परफॉर्मेंस इन द रियल एग्जाम ऑल्सो, है ना. और अनन्या ने पूछा जीटी मार्क्स इज गिविंग मी एंजाइटी. बेटा एंजाइटी तब होती है अनन्या इफ वी लुक एट दी जीटी मार्क्स एज अ जजमेंट ऑन अस. अगर हम जीटी मार्क्स को सोच रहे हैं कि हमारे पे कोई जजमेंट है तो एंजाइटी होती है. लेकिन अगर हम सोचें कि वो ये तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, मैं तो इससे अच्छा ही करूंगी अगले एग्जाम में, तो एंजाइटी कम हो जाती है. सो डोंट लुक एट एनी जीटी मार्क्स एज अ जजमेंट ऑन यू. ओके. एक बच्चे ने पूछा है इज दिस लाइव स्ट्रीमिंग हैपनिंग इन टेलीग्राम और ओनली इन यूट्यूब. ये लाइव स्ट्रीमिंग इस समय हम टेलीग्राम पे कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी हम करते रहते हैं. हम दोनों चैनल्स में आएंगे. 7 बजे यूट्यूब के ऊपर सेशन होगा, 9 PM टेलीग्राम पे सेशन होगा. अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरे पास इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप सबके साथ सीखने का मौका ले सकें, है ना. और दूसरा आपको एक आखिरी हफ्ते के अंदर जो एक हैंड होल्डिंग चाहिए वो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा गोल है आप एग्जाम के बाद आओ, आप बोलो यार सर आपने बहुत मेहनत की, मैं पूरी मेहनत करूंगा. आप एंड में आके बोलो यार सर आपने बहुत मेहनत की, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी. ओके. ओके. एक बच्चा कह रहा है व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर फाइनल 12 days व्हेन इट कम्स डीवीटी नोट्स और PYQ. डीवीटी नोट्स तो आपने करने हैं, PYQ करने हैं बेटा. आई थिंक स्वप्ना प्लस यू ऑल्सो नीड टू डू ग्रैंड टेस्ट वंस एवरी 4 days और 5 days. यू शुड बी राइटिंग अ GT बेटा स्वप्ना, ठीक है. बच्चे ने पूछा सर GT करने में टाइम लगता है. हाँ बच्चे टाइम तो लगता है, लेकिन अगर अभी नहीं करेगा ना डॉक्टर वेनिन, इफ यू डोंट डू GT राइट नाउ यू विल फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट इन द रियल एग्जाम. ऐसे सोचते हैं कि सपोज कर कल तेरा फाइनल क्रिकेट का मैच होता या इस हफ्ते 10 दिन के बाद क्रिकेट का मैच होता, तो रोज खेल के अपने आप को फॉर्म में लाना पड़ता है सो दैट यू गेट यूज टू गिविंग द टेस्ट. एग्जाम वाले दिन बिल्कुल एंजाइटी ना हो, ऐसा लगे कि यार ये तो मैं कंट्रोल में हूँ.
सो दैट इज द वे फॉरवर्ड. यू हैव टू प्ले टू लर्न हाउ टू प्ले. जैसे किसी को ऐसा आपने बचपन में भी सुना होगा ना, हम स्विमिंग कभी पानी के किनारे बैठ के नहीं सीख सकते, हमें तैर के ही सीखनी पड़ती है. वैसे एग्जाम स्किल खाली मेरे लेक्चर से नहीं सुन पाओगे, आपको करना तो पड़ेगा ना जीटी, है ना. ओके ओके. एच के कह रहा है आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग जीटी, हाउ टू वी इम्प्रूव इट. एच के आई विल टेल यू टू थिंग्स. नंबर वन, डैम्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म में अगर थोड़ा पीछे जाओगे ना तो आपको कुछ ग्रैंड टेस्ट मिलेंगे 300 क्वेश्चन के. एक पेपर 300 क्वेश्चन का कर ले. अगर एक बार 300 करने लग जाएंगे ना तो फिर 200 बहुत ही आसान लगेंगे. जैसे अगर हम जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक बार ज्यादा वेट उठा लो तो दूसरा वाला हल्का लगने लग जाता है. वैसे ही है, एक 300 का कर ले, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा. ओके. और एक बच्चे ने बोला, रंगा प्रिया सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अल्टीमेट लाइफ कोर्स, इज द नोट्स ऑफ आग लगा दो सेम एज अल्टीमेट लाइफ. डेफिनेटली बेटा, अल्टीमेट लाइफ तो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है ऑनलाइन, उसमें सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है. ये सिर्फ आग लगा दो सेशंस जो हम कर रहे हैं ये तो रिवीजन के लिए आपके लिए, कि बस आपको अगर कोई चीज़, कई बार क्या होता है ना, रिपीटेड हैमरिंग होती है. रंगा प्रिया, अवर गोल इज टू मेक श्योर दैट वी आर रिपीटेडली हैमरिंग द यूजफुल थिंग्स टू यू. आखिर क्लास पेपर में हमारी आवाज़ वापस आई जाए आपके पास, है ना. ओके. वॉरियर ने पूछा, हाउ मेनी आवर्स शुड आई गिव टू एनालाइज जीटी इनकरेक्ट. 2 to 3 आवर्स. वॉरियर 2 से 3 घंटे लगने चाहिए. जीटी में जो जो गलत है उसका वीडियो सोल्यूशन में जाके सीधा वो पार्ट सुन के खत्म करना है 2 से 3 घंटे के अंदर. ओके ओके. एक बच्चे ने पूछा, हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ फोमो. अश्विन फोमो तब होता है जब ना हमें लगता है कि दुनिया पता नहीं क्या करे, कोई कुछ नहीं कर रहा है यार, सब तू ही कर रहा है, तो यू आर द ओनली वन हु इज रियली विनिंग, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी. दुनिया जो करे क्या फर्क पड़ेगा, हीरो तो आप ही अपनी जिंदगी के, ठीक है कि नहीं. तो एक बार कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा. वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर पीपल. इट्स अवर जर्नी. हमारी जर्नी मैटर करती है आपके लिए, और उसी को आप सोचें, बाकी सब ना सोचें आप, है ना. एक बच्चे ने पूछा, आई एम गेटिंग 140 करेक्ट. DVT, PYQ, more GTs, analyzing your mistakes will help you बेटा. PK. ओके. एंड एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आई एम फीलिंग हाई एनर्जी, हाई मोटिवेशन आफ्टर दिस टॉक, एंड यस आई एवरी डे हाउएवर इज अ चैलेंज. बेटा एक बात बता डॉक्टर ड्रे, अगर जिंदगी में हर दिन एक चैलेंज है तो फिर मज़ा भी तो आ रहा है. इट इज़ जस्ट लाइक अ वीडियो गेम ना. अगर चैलेंज ही नहीं आता तो फिर मज़ा क्या आता. हम घर बैठे खाली बैठे रहते हैं, हमें कुछ होता ही नहीं, हम टीवी देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते देखते ज़िंदगी कट जाती है. लेकिन चैलेंज आता है तभी तो मज़ा आता है ना. चैलेंज ही तो गेम है ज़िंदगी का ना, कि ज़िंदगी हमारे पास चैलेंज थ्रो करती है, आप उससे कैसे राइज टू दी ओकेजन होते हो, वहीं तो पूरा मज़ा है. वही तो वॉरियर है, वही तो विनर है ज़िंदगी का, है ना. ठीक. एक बच्चे ने पूछा है, एनी एडवाइस ऑन अप्रोचिंग क्वेश्चंस विच आर सेइंग एक्सेप्ट और RS. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सबसे बड़ा एडवाइस मेरा है कि प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन रीडिंग एक्सेप्ट. सबसे बड़ी गलती होती है, कई बार हम एक्सेप्ट पढ़ना भूल जाते हैं, पहली चॉइस देखते ही मार्क कर देते हैं और पता चलता है क्वेश्चन एक्सेप्ट होता है. तो ये ज़रूर आदत डालनी है कि यू रीड द क्वेश्चन फुली इन फर्स्ट गो इटसेल्फ. क्वेश्चन को पहली बार में ही ठीक से पढ़ लें. ठीक है. एक बच्चा बोल रहा है कि कभी मेरे CBT में नंबर बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब जैसे एनाटॉमी में आपका बहुत वेरिएबल आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक वीक होते हैं. जैसे एक बार आपके एनाटॉमी में 7 में से 7 आ गए, एक बार 1 आया 6 में से, तो जो 5 गलत हुए वो कौन से टॉपिक थे, है ना. उस टॉपिक को हल्का सा पन्ना खोल के नोट्स के अंदर देखना है आपने, विवेकानंद देसाई. तो उससे क्या होगा, यू विल हैव अ बेटर एज ओवर अदर्स, क्योंकि आप अपनी गलतियों को कम कर रहे होगे. ओके. फिजा, हाउ टू रिवाइज रेगुलर नोट्स एट दिस स्टेज. इस स्टेज में रेगुलर नोट्स अब आखिर में पेनल्टी, जब आखिरी 2 हफ्ते आ जाते हैं ना, तो रेगुलर नोट्स की जगह फिजा DVT बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. ओके. एक बच्चे ने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया सर नीट पीजी के लिए, नीट पीजी के PYQ करूं क्या INI-CET के. नीट पीजी और FMG के PYQ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पीजी के लिए, क्योंकि बोर्ड कॉमन है, एंड दोज आर द वंस दैट वी हैव गिवन यू इन द PYQ का बाप कोर्स. ओके माइटोकॉन्ड्रिया. And Chintakunta Jhanvi has asked, since these 10 days, okay, these 10 days reading notes or practice question. बेटा you have to give 1 GT every 4 days, PYQs DVT. सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अभी टेस्ट भी देने. चिंताकुंता जानवी, you have to give grand test once every 4 days. Okay. Now one more question is, I'm giving more time to medicine, obs-gynae, surgery, pathopharma, justified this stage. डेफिनेटली जस्टिफाइड, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, इनको रिवाइज आपको करना ही चाहिए. AS ये ठीक है स्ट्रेटेजी, लेकिन बाकियों को छोड़ना मत.
भाई मेरा सब्जेक्ट भी देख जाना, रेडियोलॉजी 6 घंटे लगाना, जो क्लास में हमने नोट्स बनाए थे उतना देख लेना काफ़ी है ना। लेकिन कम से कम हर सब्जेक्ट को टच करना है। अगर क्लास को नहीं कर पाते तो डीवीटी कर लो, डीवीटी में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया हुआ है, दैट इज अ गुड आइडिया, है ना। एंड Sally Maske is actually doing what I just said. She's saying कि सर मैं DVT कर रहे हैं, आई एम डूइंग PYQs and also looking at notes at fast pace. ठीक आइडिया है। Only thing Sally Maske you need to add is grand test करो, 1 grand test every 4 days is very very important. Okay. Ranga Priya has asked how to make use of MCQ discussions. You should give test, and after the test whatever your mistakes are, for those mistakes you should go back to the your video solution to make maximum use of those video solutions. Okay. आई थिंक ऑडियो आ रहा है मेरे ख्याल, टेलीग्राम की तरफ से इशू होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑडियो ठीक जा रहा है ना। Okay, and finally I have one question by V. Sir, I'm doing TND notes. Definitely it's a good idea. TND notes हमेशा रेगुलर नोट्स से ज़्यादा कंसाइज होते हैं, तो आखिरी महीने में TND नोट्स पढ़ना V is always a good idea because they are more crisp, more concise, and you can finish more ground using those TND notes. ठीक है? Is the audio now coming for you? Yes. बच्चा कह रहे हैं सर अगर चॉइस ज़्यादा लंबे होते हैं तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। बेटा मैं कह रहा हूँ कि अभी के लिए आप अपने आप को आदत डालो टाइम मैनेजमेंट की। यू शुड नॉट फील लो इन द एग्ज़ाम, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। एग्ज़ाम में तो पूरा एंथुजियाज्म चाहिए मुझे, तो हर चॉइस पे काम करेंगे एंड विल फोकस ऑन ईच क्वेश्चन सेपरेटली। ओके वॉरियर, आई एम ऑल्सो, आई लव यू, आई एम सेंडिंग यू माई बेस्ट विशेस बेटा। एंड एक बच्चा कह रहा है कि सर फरवरी CBT आई गॉट 112 करेक्ट, वेरी एंशियस नवीना, आई कुड डू वेल। बेटा देखो नवीना, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज 1 CBT इफ यू हैव डन लिटिल लोअर देन योर एक्सपेक्टेशन, take a deep breath and tell yourself, I will do the best exam. I want everybody to type in the telegram, I will do my best exam in NEET PG. NEET PG will be my best exam. अभी तक कैसा भी हुआ इसको ज्यादा बेटर करेंगे, इसमें और अच्छा करेंगे, फोकस करो बेटा, ठीक है, पुश हार्डर। And one student has asked that is PYQ कबाब enough for NEET PG? Definitely it is enough, उतने ही करने हैं, उसके ऊपर आपने नहीं करने। एक बच्चे ने बोला है कि सर स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट, देखिए it is very likely that December 2023 we might be looking at a next exam which will be more clinical, which will have more questions, more from the final and third year papers, and you will have an advantage if you have been or you are a Damsonian. We are covering everything at length for clinical subjects, लेकिन पेपर में क्लिनिकल ज़्यादा आएगा नेक्स्ट आने के बाद, तो उसको फोकस में रखना है, ठीक। ओके एक बच्चा पूछ रहा है फिजा के PYQ कब आप करोगे PP किट? PYQ कब आप इज अ लेटेस्ट कोर्स, आई थिंक दैट शुड बी एनफ फॉर यू फिजा। ओके and also I want you to know that this year after your results will be out, we will be doing your interview on the YouTube channel, so be ready for the interview। सोचना शुरू करो बोलोगे क्या, और फिर वो YouTube में वीडियो को हम टेलीग्राम पे भी लेके आएंगे आपके साथ, है ना। So this is a new feature on Telegram where we can connect on a live stream, and from tomorrow 9 PM we are going to do some doubt solving events on Telegram with you, and let's we will try our best to be there with you। Okay, एक बच्चा पूछ रहा है how to rule out between the final 2 options। देखो स्वप्ना, if it is a direct question from the classes and you are stuck in 2 choices, go with your first instinct। ठीक है, अगर क्लास से बताया गया 2 चॉइस में फंसे हो तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो कहती है वो कर दे। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉजिक और लगाने की कोशिश करनी चाहिए। Okay, one student AS has asked, I am at 120 correct, can it be improved? Definitely, I have seen people improve from the last CBT to NEET PG, last GT to NEET PG। कई बच्चे इम्प्रूव करते हैं, आप भी कर पाओगे। कीप द बिलीफ हाई एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके एंड आई थिंक द सेम क्वेश्चन इज देयर, बट किसी के 135 हैं ए, किसी के 140 हैं, लेकिन सब इम्प्रूव कर पाओगे बेटा, है ना। एंड आई थिंक द क्वेश्चंस आर लिटिल रनिंग फास्ट नाउ। एक बच्चे का कह रहा है नेवर टू लेट, कह रहा है 80 to 90 करेक्ट है। नाउ बेटा इफ यू आर 80 to 90 करेक्ट, यू आर इन अ डिफिकल्ट जोन वेयर यू नीड टू इम्प्रूव फर्दर। माई सजेशन इज either if you have a TND subscription, टेस्ट एंड डिस्कशन, या फास्ट ट्रैक या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन आपके पास इनमें से है, उसमें से अपने बड़े सब्जेक्ट के टेस्ट और डिस्कशन कर दो।
बड़ा सब्जेक्ट मतलब है पैथ, फार्मा और पीएसएम और मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, क्योंकि 80-90 करेक्ट बहुत कम है, तो यानी मुझे बड़े सब्जेक्ट को बिल्ड करके इसको 120-130 पे ला पाऊंगा. ओके, नेवर टू लेट. ओके, एंड एक बच्चा कह रहा है मैं पेपर जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, तो अब क्या करना है बेटा आपने कि पीके, इफ़ यू आर एबल टू फिनिश योर पेपर इन टाइम, देन व्हाट हैपेंस इज एनी क्वेश्चन वेयर यू फील यू नीड मोर थिंकिंग, you need to mark them for review, so that in the end if you have time you can do deep dive into those questions and solve them better. Okay, and Dr. Yadav, my message to you is कि आप बहुत डर रहे हैं, आप स्ट्रेस हो रहे हैं आगे एग्जाम को लेके. आपके लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि लेट्स स्टॉप थिंकिंग अबाउट द आउटकम. आउटकम के बारे में मत सोचो, अभी सोचो सीधा का सीधा कि मेरे को हर दिन क्या करना है. देखो, आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू टुडे दैट डू नॉट think about the outcome. Outcome is never totally in our hands. आउटकम खाली हमारे हाथ में होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर और होते हैं जो भगवान के हाथ में रहते हैं. लेकिन हम अपना प्रोसेस तो कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं. सो आई वांट यू टू फोकस ऑन योर प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम. सब टेंशन खत्म हो जाएगी और आप बहुत अच्छा कर पाओगे. ओके, एंड वन बच्चा इज सेइंग कि सर हाउ मेनी negatives can I do? Let me just tell you here. How many questions should I attempt to avoid negative marks? So don't avoid negative marks, Navina. Your goal should be, if you are able to rule out 2 choices, अगर 2 choice में rule out कर पा रहे हो तो फिर आपको उसको कर देना चाहिए. 2 rule out हो रहे हैं तो कर देना चाहिए. 1 rule out हो रहा है तो फिर थोड़ा ढूंढना चाहिए कि क्या किसी तरह से एक और रूल आउट कर सकते हैं. अगर 4 चॉइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा. Okay, I think अभी let's see, डॉक्टर वेनिन, आई डोंट नो ये सेशन अभी ये यहाँ पे सेव होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं उसको डाउनलोड करके मैं यहाँ से अपलोड करवा दूंगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको डैम्स डेली की यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अपलोड करा दूंगा. Okay, so Simran, I'm taking your question. DVT enough? Yes, but with DVT also do PYQ kebab so that you know the common previous year questions, and also do the grand test every 4 days. Okay, Gregory House ने पूछा DVT के PYQ kebab दोनों, both you have to do both. ओके, एक बच्चा ने पूछा पीवाईक्यू का बाप करके क्या मुझे क्वेश्चन बैंक से भी पीवाईक्यू करने? बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओनली यू डू दी 1 कोर्स एंड दैट इज एनफ. उसके ऊपर नहीं करने की जरूरत है. हाउ मेनी जीटी शुड आई गिव, शुभांकर? once every 4 days. Okay, and Aniketan, you are at 120 and Nikita is 110 to 120. How to improve? DVT will definitely help you to improve. Last 10 days में करना ही करना है और GT देने, and you need to spend 2 hours after the GT to look at the video solutions of your mistakes so that you are able to improve further. Okay, so I hope this gives you the edge, and I hope you are able to do well in life, and I am here to tell you that आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, and we will come back again, and this is how we will do live streams. Make sure that you tell your friends and your colleagues how to join it, क्योंकि टेलीग्राम में कई लोग को नहीं पता है. So make sure that all your batchmates and your friends प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ द डैम्स टेलीग्राम ग्रुप कि वो उसे ज्वाइन करें, ताकि जब हम कल रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीम कर रहे हों ज़्यादा बच्चे उसे यूज़ कर सकें. आपको आज, जब आप आज पास्ट के बारे में सोचोगे तो स्ट्रेस होगा कि पहले ये गलती क्यों की. आउटकम के बारे में सोचोगे तो एंजाइटी होगी, लेकिन अगर आज के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिविटी रहेगी. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, फोकस ऑन प्रेजेंट. एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट यू टू नो इज, इट इज़ अ वेरी कामिंग थॉट. मुझे लगता है इसको जब भी मैं सोचता हूँ मुझे बहुत कामनेस आती है. मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ, आप सब बच्चों से, कि जब भी मैं कभी भी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ भी होता है, मुझे लगता है यार ये ऐसे क्यों हो रहा है. मैं कंट्रोल करने की भी कोशिश करता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है. फिर मैं सोचता हूँ यार शायद कोई बड़ा प्लान है, हमसे ऊपर कोई बैठा है जिसने प्लान बनाया और उसने ठीक ही सोचा होगा. सो यू हैव टू हैव फेथ इन द बिगर प्लान, एंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज बिगर प्लान, सो आज आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो गलत कर ही नहीं सकता है. सो हैव दिस पॉजिटिविटी इन यू कि देयर इज अ बिगर प्लान अप देयर. कोई तो आपके लिए बड़ा प्लान बना रहा है, वो गलत कर ही नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि वो तो गलत करता ही नहीं है. सो दैट मीन्स अभी जैसा भी लग रहा है एंजाइटी, वो एंजाइटी बेकार है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई आपको टेक केयर कर रहा है. सो यू हैव समबडी अप देयर, God Almighty, He's taking care of you. Have faith in His bigger plan. Keep working hard, and we will be here, again and again
on DAMS Telegram, DAMS YouTube, DAMS Instagram. So please follow us on all these platforms, and I'll be there again and again to help you out. I wish you all the best. Keep rocking and make it happen. So next 7 days, Dams Daily YouTube channel from 21st to 27th, we will be doing at 7 p.m. a revision session by a faculty member. The calendar is already there in the Telegram group, and 9 p.m. there will be a session on the Telegram group also. So make sure that you know what is going on, so that if you want to ask any doubt to the question, you can do it. Keep rocking, make it happen, and keep reminding yourself कि अपना time अपन खुद लाएगा, अपना time अपन खुद लाएगा. Bye everyone.